Measuring measuring service quality. Okay, how to measure the quality of the service? See, there are four factors, two, four, five factors are there through which you can measure the quality of the service. Okay, आपको सर्विस कैसे प्रोवाइड किया गया है, आप उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये किस चीज से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे मेजर कर सकते हैं. Many parameters are there. Out of many parameters, these five parameters are very much important. Okay, am I audible ना, वॉइस क्लियर है. Yes, yes, sir, yes, sir. पहला है, पहला है tangibles. ओके, tangibles क्या है ये? द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस सच एज फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड पर्सनल अपीयरेंस. ठीक है, द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विस सच एज फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल अपीयरेंस. अब मैं एक एक करके एग्जांपल्स देता हूं सो दैट इट माइट बी क्लियर टू यू. देखो, tangibles are one of the important parameters through which you can measure the quality of the services that has been provided to any customer. Say for example, AC installations in your home. Okay, suppose for example AC install, air condition installations at your home. So first of all, what you will going to check for the installation? What type of servicemen are coming, whether they are knowledgeable about the product or not, whether they are efficient for the installation of that particular AC or not. Okay, what are their dresses, whether they uniform dress properly or not, या फिर कैजुअल ऐसे चप्पल पहन के आ गया है. ओके, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए. ठीक है, Okay. ये होता है, दिस इज द फिजिकल एस्पेक्ट्स. ये होता है फिजिकल एस्पेक्ट्स. ठीक है, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स होता है एक कस्टम एक सर्विसमैन का. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब सर्विस करवाने के लिए जाते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो कस्टमर के, तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते होंगे, डेफिनेटली प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाते होंगे. यू मस्ट हैव अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, एंड टू whom Yes, sir. and the workers or the laborers under your service, under your guidance, they are also having some proper uniform, having some dress code. So this is the important aspect of service plan. ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ये प्रॉपर होना चाहिए. जैसे देखिएगा, कोई इसका सबसे बेटर एग्जांपल, आप जब एक्वा गार्ड या फिर एक्वाफिना या फिर लिफ प्योरिट, ये सब कुछ जब आप घर में वाटर प्यूरिफाई इंस्टॉल करने के लिए आते हो, तो whenever the serviceman used to come and visit to your premises, first impression is that they properly dressed, they wearing a full shirt, whether it is a hot humid season, winter season, rainy season, they always wear a full sleeve uh, shirt, Proper pants. dress code. They have a proper dress code, and proper dress code doesn't mean they wear a t-shirts and all. Proper dress code means they wear a tie, they wear a tie, proper shoes. They used to wear a proper eye card. They wear a proper eye card. Okay, so this one is one of the most important aspect, and this service is called tangible. ये tangible के अंडर में आता है फिजिकल अपीयरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है tangible. ठीक है, इससे इंप्रेशन क्रिएट होता है कि ये वेल ग्रूम्ड प्रोफेशनल सर्विसमैन है. कुछ भी क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, वट एवर द डाउट्स, दे कैन क्लियर अवर डाउट्स. दे आर द प्रोफेशनल्स. Am I clear? Is it clear to you? This come under the tangibles, the physical aspect of the service. Okay, and apart from physical aspect, another important part is that how they are been knowledgeable about the product, whether they are means knowledgeable about the product or not. That is also comes under the physical aspects of the game. Whether they are properly trained or not, whether they are properly been giving proper training about the particular product or not. This all comes under the
tangible aspect, that is the physical aspect of the service. And another important part is what are the facilities that is being provided to you. What are the apart from the installation, what are the facilities they are providing to you? What are the equipments or tools that has been required they are bringing with them? आप जब टीवीएस के शोरूम्स या फिर कोई भी बड़े शोरूम्स में जाओगे गाड़ी गाड़ी सर्विस करवाने के लिए, मैं ऐसे छोटे मोटे दुकान में नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े सर्विस जो सेंटर्स है, प्रॉपर सर्विस सेंटर्स है, टीवीएस सर्विस सेंटर्स, अब वहां जब जाओगे ना तो वहां देखिएगा वॉट एवर द टूल्स दे आर ऑपरेटिंग, वॉट एवर द टूल्स दे आर हैविंग और यूजिंग, द टूल्स आर वेरी मच सोफिस्टिकेटेड टूल्स, and it required proper skill to utilize that tools. Okay, जो भी मशीनरीज इक्विपमेंट्स जो भी टूल्स होते हैं वो प्रॉपर एफिशिएंट होना चाहिए, तब जाके वो काम में आएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ फिजिकल एस्पेक्ट में होता है। एंड पर्सनल अपीयरेंस, मैंने तो पर्सनल अपीयरेंस के बाद पहले ही आपको बता दिया है। So these are the parameters. These are the first few parameters are there through which you can measure the quality of the services that you will going to get from the particular serviceman. Tangible का मतलब समझ में आ गया ना? This is called Yes, tangibles. sir. Yes, sir. Next is reliability. The next one is the reliability. What is the meaning of this particular reliability? Is all about the ability to perform and promise service dependably and accurately. Okay. ओके, Hmm. नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर। पीपीटी में क्या होता है थोड़ा सा उसको बताया जाता है, अब उसको मैं मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ क्लियरली। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वास, रिलाई करना। ठीक है, द एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोमिस्ड सर्विसेज। अभी आप एक देखिएगा, एक एड्स आते होंगे टीवी में, एशियन पेंट्स विद इन few hours they will going to paint your interiors. Okay, they will going to paint your house, they will going to paint your interiors within a few, and the tools they are using are of highly sophisticated tools। वो ब्रश और वो रोलर लेके वो सिर्फ रंग नहीं करते हैं, बहुत सारा मतलब फास्ट पेंटिंग, प्रोफेशनल एआई इंटेलिजेंस यूज करके वो पेंटिंग्स करते हैं, मतलब पेंट करते हैं, घर को पेंट करते हैं, फर्निश्ड करते हैं। This is the reliability, this is the promise, and because of this reliability and promise the customers are very much dependable on a particular product। आज देखिएगा बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारा पेंट्स जो है मार्केट्स में, इंडिगो और भी छोटे मोटे बहुत सारा बर्जर्स, लेकिन एशियन पेंट्स एक ऐसा पेंट्स है जो कि पूरा मार्केट छाया हुआ है, जिसका शेयर्स आप खरीदने के लिए जाओ शेयर्स बहुत हाई रहता है, और ये ऐसा Yes, कुछ sir. प्रोडक्ट है जिसका शेयर कभी गिरता ही नहीं है, उतना नहीं गिरता है। क्यों? बिकॉज Hmm. द कस्टमर्स हैज द रिलायबिलिटी। चलिए आ जाते फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे नेस्ले, अमूल, ये एक ऐसा ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स है जिसका मार्केट या जिसका शेयर कभी डाउन हो ही नहीं सकता। चलिए मैं इसका Yes. एक और फूड Trusted प्रोडक्ट, product है sir. यस, एक और ब्रांड प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इन 2021 अबू धाबी मैच, ओके, तो उसने press conference, while doing the press conference, uh, whatever in the in a plain chairs, and there is a desk and chairs are there arranged, okay, before the press conference, and after that they used to set on the on the decks they used to have water bottles, water, aquafina or whatever the brand waters, and cold drinks. What Cristiano do? Cristiano just remove the Pepsi or Coca Cola cool drink and keep it aside, and just take it and just make a front for the water। इससे शेयर मार्केट का बाजार दूसरे दिन पूरा डाउन हो गया था। कोको कोला का जो शेयर मार्केट था या पेप्सी का जो शेयर मार्केट था वो पूरा डाउन हो गया था, गिर गया था। क्यों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंपॉर्टेंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा था अपने कस्टमर्स को, प्लीज यूज ड्रिंक
pure water, plain water, apart from Coca Cola. Whenever you feel thirsty, avoid using Coca Cola. Just drink water, plain water. That will be good and hygienic and healthier for your body. This is a clear message that he is giving towards the customers. दूसरे दिन वॉरेन बफेट जो है सबसे बड़े मतलब मार्केटिंग रिसर्च के बादशाह कहा जाता है वॉरेन बफेट। गूगल में जाके सर्च करना है तो वॉरेन बफेट का पैसा पेप्सी में बहुत लगा हुआ था, पैसा लगा हुआ था। उसने देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरा शेयर जो है पेप्सी का एक दूसरे दिन पूरा गिरा दिया, डाउन चला गया। बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। वॉरेन बफेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टीम्स आए थे उनको सब कोल्ड ड्रिंक्स दिए और खुद भी एक कोल्ड ड्रिंक। दूसरा दिन फिर शेयर अप हो गया। ठीक है, तो ये होता है रिलायबिलिटी। वॉरेन बफेट को देख के हम रिलायबल हो रहे हैं कि यस पेप्सी इज गुड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख के हमको लग रहा है कि यस पेप्सी इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये जो विश्वास है, दिस इज द रिलायबिलिटी। तो आपके पास जब कोई भी सेल्समैन या कोई भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर जब आपके पास आते हैं तो आप उनका अपीयरेंस, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ यूटिलाइजिंग देयर स्किल्स, वे ऑफ यूटिलाइजिंग देयर इक्विपमेंट्स, इससे रिलायबिलिटी मिलता है कस्टमर को। इसीलिए बहुत बड़े जो शोरूम्स होते हैं, बहुत बड़े जो कंपनीज होते हैं, वो अपना कस्टमर सर्विस को या सेल्समैन को अपग्रेडेड करते रहते हैं, ट्रेंड करते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में, ताकि मार्केट शेयर डाउन ना हो जाए। आप जानते होंगे कि अगर एक सेल्समैन अच्छा सेल्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है, अच्छे से अपना स्किल नहीं दिखा पाता है, तो विद इन अ टाइम द सेल्स लेवल ऑफ द सेल्स विल गो डाउन। मार्केट का कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है। दैट इज व्हाई रिलायबिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स where you can measure the quality of the services that has been provided by the serviceman. Am I clear? Is it clear? Or if you have any doubt, please tell me. Do you have any doubt? No, sir. Okay, very good. Come to the third, that is the third one is responsiveness. The third one is the responsiveness. What is the meaning of this? The willingness to help customers, the willingness to help customers and provide prompt service. This is the responsiveness meaning. Responsive meanings is the willingness to help customers and provide prompt service. ठीक है, क्विक सर्विस होना चाहिए। कस्टमर केयर ने आपको, कस्टमर केयर में आप कॉल किए कुछ भी प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए, तुरंत उसका रिप्लाई आपके पास आ जाता है, सर्विस कोड आ जाता है और नेक्स्ट विद इन 24 आवर्स आपके पास सर्विसमैन प्रोवाइड हो जाएगा, आपको दे देगा। जैसे महिंद्रा, महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आप लीजिए, कहा जाता है अगर बीच रोड में आपका गाड़ी खराब हो जाता है, यू नीड टू कॉल टू द कस्टमर सर्विस, यू नीड टू गिव द प्रॉपर लोकेशन वेयर यू आर, एग्जैक्ट लोकेशन आपको देना है, एग्जैक्ट एरिया आपको मेजर देना है, वो आपको कोड देंगे और टाइम दे देंगे, विद इन 1.5 आवर आपके पास सर्विसमैन प्रोवाइड हो जाएगा। इसीलिए महिंद्रा का जितने भी शोरूम्स है, गाड़ी है, वो आज सबसे मार्केट में हाई है। देख रहे हो कितना जबरदस्त एक एक गाड़ी लॉन्च कर रहा है। अभी मार्केट दूसरी गाड़ी का इन कंपेयर टू महिंद्रा, दूसरी गाड़ी Yes, मार्केट अभी sir. डाउन है। लुक एट द स्कॉर्पियो यार, look at the Hmm. remodeling of a Scorpio, new model of a Scorpio. Look at the remodeling of the Bolero. Look at the remodeling of XUV 700 Mahindra. इतना बहुत सुंदर। लग्जूरियस गाड़ी है, जबरदस्त, कम पैसा, सर लोगो भी सर चेंज कर दिए हैं। एकदम लोगो चेंज हो गया। लोगो इतना इतना भी महिंद्रा इज ब्रांड, नाउ इज क्रिएटिंग अ ब्रांड अपार्ट फ्रॉम एक्सयूवी। जिसके पास है एक्सयूवी 500, 700, 300 गाड़ी लेके आ रहा है, वेन्यू, दिस ऑल आर द ब्रांड्स नाउ ऑफ महिंद्रा। और क्यों? सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, रेस्पॉन्सिवनेस है। रेस्पॉन्सिव मीन्स द पर्सन हैविंग द विलिंगनेस टू बाय, and the person if willing to buy, they will going to buy the Mahindra product only because capacity है यार, वेटेज है गाड़ी में। आप उस गाड़ी को लेके लद्दाख चले जाओ यार, कुछ दिक्कत नहीं आपको, पता ही नहीं चलेगा यार मैं गाड़ी में इतना
17-18 घंटे बैठा हुआ था। सर बहुत पावरफुल इंजन है सर। बहुत पावरफुल इंजन, फ्यूल एफिशिएंसी, आपका जो ये चेसिस है, जबरदस्त हार्डी चेसिस है। आप अगर माउंटेन में चढ़ाई कर रहे हो, गो माउंटेन में चढ़ाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चेसिस इतना टफ है, इतना हार्ड है। ठीक है, इसीलिए है। उसी में देखो टाटा सुमो, एक टाइम आया था टाटा सुमो का गाड़ी बहुत 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 मार्केट कवर अप किया था, बट अल्टीमेटली वो फॉल हो गया। क्यों? टाटा सुमो का चेसिस जो है और ब्रेक्स जो है, वो कभी कभी दिक्कत हो जाए, चेसिस ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। इसलिए टाटा सुमो आज न्यू मॉडल का टाटा सुमो भी आया हुआ है, लेकिन हार्डली द पर्सन कोई बाई करता है। जिसके पास भी है पुराना मॉडल का टाटा सुमो है, न्यू मॉडल का जो टाटा सुमो है, आप जमशेदपुर में शायद ही आपको मिले, नहीं मिलेगा। 100% आई एम श्योर अबाउट दैट। पूरे झारखंड में आपको टाटा सुमो का नया मॉडल का जो गाड़ी आया हुआ है, गूगल में सर्च करके देख लो, शायद ही किसी के पास होगा। व्हाई? द पर्सन्स आर विलिंग एंड वेरी मच पर्सन आर डिपेंडेबल ऑन महिंद्रा। बुक हो जाता है यार, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए गाड़ी बुक रहता है, आपको 8 महीना 10 महीना बाद वो गाड़ी मिलेगा। कैन यू इमेजिन? यस सर। दिस इज कॉल्ड द रेस्पॉन्सिवनेस। जिंदगी में अगर कुछ भी बिजनेस करना हो ना, तो इस तरह का बिजनेस आपको करना है, जिसमें tangibles, reliability and responsiveness, ये तीनों आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टू मेजर द क्वालिटी ऑफ अ सर्विस। और क्विक एंड प्रॉम्प्ट, मैंने कहा ना, क्विक एंड प्रॉम्प्ट सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग। आप 100 किलोमीटर के अंदर या फिर आप कहीं भी चले जाओ, सोचो आप यूर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स लद्दाख, फ्रॉम जमशेदपुर टू लद्दाख आप जा रहे हो, आप जाइएगा जमशेदपुर हाई रूट से, बहुत जगह ऐसा लद्दाख ये करते हैं, हायाबुसा जो स्कूटी है, हायाबुसा जो गाड़ी है, उसको लेके निकलते हैं हम लोग। जब कहीं यस से सर। आते हैं तो हम लोग देखते हैं, वी आर सरप्राइज्ड एंड वी आर थ्रिल्ड। सर एक जमशेदपुर का यूट्यूबर भी गया, वो कल आ रहे हैं जमशेद लद्दाख से जमशेदपुर। ये सब बहुत सारे। तो आजकल देख रहा हूँ कि महिंद्रा का बोलेरो स्कॉर्पियो लेके सब, एक्सयूवी लेके सब चले जा रहे हैं। तो मैंने जब एक पूछा, एक जस्ट यूट्यूब वीडियोस में मैं देख रहा था, आई वाज गोइंग विद रिसर्चिंग विद ऑल दिस प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो आई वाज फाइंडिंग एंड सरप्राइज्ड एंड horrified to listen that, sir, you don't believe the quality of the Mahindra is providing, na, the quality they are providing, the engine, the backup, the powers, the technologies, whatever they are providing, with minimum amount, they are providing excess, they are providing huge. आप अगर XUV 700 ले लियो और एक फॉर्च्यूनर ले लो, दोनों आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। देख लो, फॉर्च्यूनर तो एक, मतलब एक फॉर्च्यूनर तो एक मतलब भोकाल गाड़ी बन गया है आजकल। फॉर्च्यूनर मतलब बहुत जबरदस्त, कंफर्टेबल। आप 17-18 घंटे यहाँ से दिल्ली चले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्टेशन उतरो, आपको लगेगा कि आप कहाँ हो, आप घर में बैठे हुए हो, बिस्तर में बैठे हो। इतना कंफर्टेबल जर्नी है। द सेम लक्सरी दैट इज प्रोवाइडिंग बाय द XUV 700 ऑल्सो। और अब इतना मार्केट कंपटीशन रश हो गया है कि द पीपल आर परचेसिंग XUV 700, जिसकी वजह से फॉर्च्यूनर का दाम गिराना पड़ा, जिसकी वजह से फॉर्च्यूनर का दाम गिराना पड़ा। एक और गाड़ी आया था, मैं ये गाड़ी सब बहुत फंसी हूँ, आई एम वेरी मच फंसी अबाउट द कार्स एंड ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फोर्ड का एक एंडिवोर आया था, अभी भी है मार्केट में, फोर्ड का एंडिवोर। टाटा हम्म। का हैरियर, हम्म। टाटा भी हैरियर निकाला है, फोर्ड का एंडिवोर, हैरियर फोर्ड बहुत जबरदस्त, मेरा फेवरेट गाड़ी है वो। उससे जो टाटा। इंजन है ना सर, उसमें लैंड रोवर के साथ इंजन लगा हुआ है हैरियर में। हाँ, यस। तो अभी टाटा का हैरियर मार्केट अभी एकदम पूरा मार्केट ये कर रहा है, इतना जबरदस्त गाड़ी है टाटा हैरियर। उसके बाद फोर्ड इंडिगो एक आया था, इन कंपेयर टू फॉर्च्यूनर, 43 lakhs, 45 lakhs, जिस मच द मिनिमम मार्जिन। बट एंडिवोर प्राइस, एंडिवोर मार्केट पूरा, जब से ये महिंद्रा आया है, XUV 700 आया, अब फोर्ड चालू ही नहीं किया। जितने भी एफिशिएंट वेल्दी रिच फैमिलीज है, वो भी अभी फॉर्च्यूनर और फोर्ड नहीं ले रहा है, वो XUV तरफ, महिंद्रा की तरफ ही जा रहा है। क्या क्या गाड़ी है XUV 700, इतना लग्जरी है। लुक भी तो सर वही, बहुत लग्जरी है। तो जब जैसे ही मैंने एक यूट्यूब से देख रहा था, दे आर जस्ट ट्रैवलिंग इन लद्दाख विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज, विदाउट एनी स्टॉप, कंटिन्यूअस रनिंग फॉर 17 आवर्स। जस्ट हवा में उतर रहा है, खाना खा रहा है, उसके बाद गाड़ी कंटिन्यूअस रन कर रहा है। दूसरी बात, टायर पंक्चर हो जा रहा है, एक वीडियोस में दिखा रहा है, टायर में कुछ दिक्कत हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तुरंत, कहाँ हो, लोकेशन कहाँ है आपका, आप डाल दो, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। दिस इज द प्रोवाइडिंग, this is the responsiveness. Another one is about the assurance of the product, the knowledge and courtesy of the
ability to convey trust and confidence. This is the assurance about the product. मैं कुछ आपसे खरीद रहा हूँ, क्या assurance आप दे रहे हो? अगर आप अच्छा एश्योरेंस दोगे तभी ना मैं रिकमेंड करूंगा, कस्टमर तभी रिकमेंड करेंगे, यस यू बाय दिस प्रोडक्ट। आज महिंद्रा हो गया, आज अमूल का फूड प्रोडक्ट्स हो गया। देखो जमशेदपुर में आप दूध पैकेट लेने के लिए जाओ, एक और है क्या, मेधा है, सुधा है, लॉट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स आर देयर, बट आशीर्वाद। स्टिल आशीर्वाद, बट स्टिल द पीपल आर वेरी मच, दे आर लोकल प्रोडक्ट्स। कहा जाता है कि अमूल आपका 2-3 दिन पहले का, एक हफ्ता पहले वो प्रोडक्ट दिल्ली या कहीं से लॉन्च होता है, उसके बाद यहाँ पहुंचता है 3 दिन लगता है। डीप फ्रीजिंग में नहीं रखोगे तो अमूल का प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर पाओगे, प्रिजर्वेटिव रहना चाहिए, बट स्टिल। और ये मेधा हुआ, सुधा हुआ, दिस ऑल आर द फूड प्रोडक्ट्स। ये तो आदिपुर में प्लांट है इसका। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है इंटर्नशिप करने के लिए वहां जाते हैं, तो आई टोल्ड देम, आई जस्ट सर लर्न फ्रॉम सुधा देम। मेरे घर के बगल में ही है सर, मेरे घर हाँ से यस, 500 मीटर में है, 1 किलोमीटर। हाँ वो नहीं, you just ask them, you just take a feedback of Sudha and Amul, maximum people will going to मैंने जो इंटर्नशिप करने के लिए गया था, आई जस्ट रिकमेंड देम, आई जस्ट टोल्ड देम क्या डिफरेंशिएट है। तो सर देखिए लोग मिल्क कलेक्शन करते हैं, उसके बाद पैरामीटर्स तो डेफिनेटली बहुत सारा है, लेकिन जिस तरह का अमूल अपना पैरामीटर्स चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, उतना नहीं करता है। इन लोगों का काम है सर मार्केट पकड़ना, कम दाम में मार्केट पकड़ना और किसी तरह से मार्केट को कैप्चर करना। लेकिन आज तक अमूल को कोई हरा ही नहीं पाया। अमूल ने इतना वेराइटीज ऑफ मिल्क निकाल दिया है, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक आया फैट फ्री, एक आया है फैट, एक आया है क्रीम फ्री, एक आया क्रीम, फर्स्ट लेवल क्रीम 1, क्रीम 2, क्रीम 3, 3 लेवल्स ऑफ क्रीम निकाल दिया है। क्या सेल है, जबरदस्त। अमूल का भी इतना प्रोडक्ट्स है, ह्यूज प्रोडक्ट्स। एक दुकान है जो सिर्फ अमूल का ही प्रोडक्ट्स बेचता है, उसमें लाइन लगता है, वो मतलब कॉपी लेके बैठता है, डेली पैसा नहीं देता है, मंथली मंथली होता है, हिसाब होता है, आता है 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो दही, ये वो वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। कितने साल है अमूल का, देख लो, सिंस आई डोंट नो अबाउट 1990 से मैं ऐड देख रहा हूँ, अमूल अटेली बटेली डिलीशियस, तब से मैं ऐड देख रहा हूँ, स्टिल इट्स रनिंग। तो दीज आर द एश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, दीज आर द एश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को बिल्कुल सेम रखा है। ओके, उसके बाद क्या है, एबिलिटी टू कन्वे द ट्रस्ट। ये ट्रस्ट, एक बार अगर विश्वास हो जाता ना, उस विश्वास को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर दूसरी बार विश्वास अगर डगमगा जाता है और टूट जाता है, तो जिंदगी में वो विश्वास कभी वापस नहीं होता है। अमूल ने वही काम किया है। ठीक है, दिस इज अबाउट द ट्रस्ट बिल्डिंग, दिस इज अबाउट द एश्योरेंस। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन मेजर द parameters or service of the quality. And the last one is empathy. Empathy means the caring. Empathy, other word is caring. उसके बाद attention, providing attention to the customers, providing the empathy, caring nature to the customers. ठीक है, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया है, आपने एक बार जस्ट इंस्टॉल कर दिया है, दोबारा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप मैं नहीं आऊंगा, ये नहीं हो सकता है। आपको जितना बार आपका प्रोडक्ट आप यूज किए हो, आप लगाए हो घर में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अपने घर में लगाए हो, जितना बार प्रॉब्लम्स होता है, आप आइए, आप चेक करके जाइए। दिस इज अबाउट द एम्पैथी, दिस इज अबाउट द केयरिंग नेचर। आजकल ना ये चीज ना मैं देख रहा हूँ बहुत कम हो गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स सर का कुछ भी बहुत ही नहीं, ज्यादा कम हो गया सर। नहीं ब्रांड बहुत को, सारे सर, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में ऐसा कम हो गया है। हाँ ऐसा नहीं, इतना नहीं होता, 1-2 बार आ जाएगा फ्री सर्विसिंग वगैरह वगैरह, उसके बाद उतना वो लोग ध्यान नहीं देता है। ये ठीक है, सर अभी तो सर सर्विसिंग भी बहुत कम कर दी है कोई भी चीज में। हाँ पहले ऐसे सर्विसिंग बहुत, हार्डली मतलब 5-6 सर्विसिंग मिल जाता था, अभी तो सर 2 या 3। दिस इज अबाउट द, दिस इज अबाउट द एम्पैथी, ये अबाउट एम्पैथी। हाँ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी है, सम प्रोडक्ट्स आर डेफिनेटली देयर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आर देयर, गुड्स आर देयर, जिसमें अभी भी उस तरह का सर्विस मिलता है। बट मैक्सिमम आजकल देख लीजिए मार्केट में बहुत सारा जल्दी जल्दी, मतलब इतना डेली एवरी डे न्यू न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इतना लॉन्च हो रहा है कि उसका सर्विस मैन, उसका सर्विस प्रोवाइड करवाना मुश्किल है। और 1-2 सर्विस अगर मिल भी जाता है, उसके बाद आपको बहुत, जैसे एलजी का, इफ यू वांट अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ एलजी ना, यू नीड टू बुक फॉर वीक। इसलिए एलजी का प्रोडक्ट उतना, मतलब एलजी का कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर हुआ, ये परचेस होता है इन कंपेयर टू वर्लपूल।
उसके बाद इन कंपेयर टू एक सैमसंग, आज देखिए सैमसंग का बाजार बहुत है, क्यों सैमसंग का ऐसा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स, आप कोई भी स्पेयर पार्ट आपको जल्दी मिल जाता है इन कंपेयर टू यस एलजी। सर। Okay, so this is about the empathy. So these are the few ways through which you can the measure the quality of the services. Okay, this is the way you can measure the quality of the services. Number one is tangible. Number two is reliability. Number three is responsiveness. Number four is assurance. Number five is empathy. ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यहाँ आपका यूनिट 1 यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो गया, तो आज यूनिट ओके। 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कोई डाउट्स है, कुछ भी है, ये पीपीटी आपके पास है ना? यस सर, आप मैम भेज दिए थे मुझे। भेज दिया ना, चलो ठीक है। तो इस अब यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 यूनिट 2 बोथ आर कंप्लीटेड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, क्योंकि मैं नेक्स्ट यूनिट में जाऊंगा, दैट इज यूनिट 2। नो अगर सर, कोई कोई डाउट है, डाउट नहीं है सर। आप इतना अच्छा एग्जांपल देके समझाते हो, डाउट ही नहीं रहता है। नहीं बिल्कुल ऐसा तो कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल मेरे से भी अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, दो विल गोइंग टू मोर एफिशिएंट, अच्छा एग्जाम्पल देगा, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट नहीं है। पिछले वाला स्लाइड, पहले वाला स्लाइड, कुछ भी देख लो, एक बार चेक कर लो, क्योंकि रिपीटेशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा वास्ट। हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस? नो सर। लिसन, the first important aspect of any product, whenever on any product, if the price, if the government or any company want to fix any price of any particular product, first of all, आज थोड़ा सा आउटलाइन बता देता हूं, they do a market survey, they do a market survey, and according to the market survey they will going to see the environment। आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते होंगे, एक दो दिन चलते होंगे, उसके बाद बंद हो जाते होंगे। जैसे एक अच्छा सा मैं आप एग्जांपल देता हूं, एक अच्छा एक फूड प्रोडक्ट आया था मकेन। मकेन एक फूड प्रोडक्ट आया था जिसमें फ्राइड आइटम था। ओके, ये एग्जांपल इसलिए दिया जाता है कि ये मतलब जैसे इसका ग्राफ चढ़ा, इसका ग्राफ चढ़ा, ग्राफ तुरंत उतर गया। कैसे मैं बताता हूँ, करिश्मा कपूर इसका ऐड किया था, यूट्यूब में देख लेना मकेन करके, आज भी मिलता होगा, शॉपिंग मॉल्स में आप भी चले जाइए मकेन मिलते होंगे, बट वेरी रेयर। एवरी शॉपिंग मॉल्स, इफ यू गो टू एवरी शॉपिंग मॉल, you will never ever going to get this mccain. Few specific shopping malls are there where you can get this product, but before this coming to the market, they endorse this product. The endorsement of this product in such was done in such a hype that when it enter and capture the market, the people going to expect those things। देखो इंसान क्या होता है, कस्टमर जो होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट स्प्लेंडर चीज में, चकाचौंध में ना बहुत विश्वास करता है। जैसे ही कुछ देखता है प्रोडक्ट, तुरंत उस चीज को परचेज करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मकीन एक ऐसा फ्राइड फूड प्रोडक्ट था, फ्रोजन फूड प्रोडक्ट था, जिसमें फ्रेंच फ्राइज, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, या बहुत सारे चिकन आइटम्स, या फिर कोई भी पोटैटोज फ्राइड आइटम्स, वो डीप फ्रीजिंग करके मिलता था। आप घर में लाइए, पैकेट ओपन कीजिए, डायरेक्ट कढ़ाई में डालिए, स्नैक्स आइटम इज रेडी। इतना फास्ट फूड, मतलब वो रेवोल्यूशन लाया था मकेन। लेकिन क्या हुआ कि जो प्राइसिंग था वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं था। नाउ हाउ कैन यू से दैट द प्राइस इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली? अगर कुछ पुराना पैकेट्स अगर होता मकेन का, तो मैं आपको दिखा था कि वहां लिखा रहता पर डे कंजम्पशन 0.25 पैसा, पर डे कंजम्पशन 50 पैसा फॉर वन मकेन। सपोज एक चिकन का आप कुछ प्रोडक्ट आप ले रहे हो, एक पैकेट से एक चिकन का उठा रहे हो, मतलब क्या आपका 25 पैसा से 50 पैसा उसमें जा रहा है। वो ऐसा हिसाब लगा के वो प्रोडक्ट बेचता था मार्केट में, बट ग्रेजुअली शार्प डिक्लाइन हो गया। आज मकेन बाजार में बहुत कम मिलते हैं, मिलते हैं डेफिनेटली, मार्केट में है, पूरा नहीं गया है, लेकिन कैप्चर करना मुश्किल हो जाए। जैसे पार्ले जी, पार्ले जी बिस्किट्स जो है अभी भी मार्केट में है, लेकिन आप उसका उतना ब्रांडिंग, एंडोर्सिंग, एडवर्टाइजिंग देखते होंगे नहीं।
पहले बहुत था, बहुत बहुत इसको एडवर्टाइजिंग किया जाता था, बहुत। शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने इसका ऐड किया है, आप देखिएगा यूट्यूब में। मार्केट रिसर्च, ये सब बहुत एग्जांपल्स आपको पता चलेगा। गब्बर सिंह, शोले फिल्म में गब्बर सिंह इसको ऐड किया था, पार्ले जी। तभी पैकेट्स में एक अलग था, पैकेट का प्रोडक्ट क्वालिटीज, कलर ऑफ द पैकेट्स, क्वांटिटी ऑफ द पैकेट बहुत अलग था पार्ले जी। पार्ले जी आज भी सबसे सस्ता बिस्किट्स है, 3 रुपया या पांच यस रुपया सर। पड़ता है। बट यस सर। now some specific shops are there from where you can purchase that particular product, parle जी। why it's happening? या फिर प्राइसिंग को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? प्राइसिंग को सिलेक्ट करता है अबाउट द कंपनी, सिलेक्ट करता है, लेकिन कंपनी पहले मार्केट सर्वे को देख लेता है। कैसे देखता है? लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले सपोज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, अब सेम प्रोडक्ट, जैसे मैकिन का फ्राइड प्रोडक्ट्स जो है, फ्राइड प्रोडक्ट, उसका मतलब कंपैरिजन में बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में है। तो अगर कोई नया ब्रांड प्रोडक्ट्स द कंपनी वांट्स टू लॉन्च, तो व्हाट दे विल गोइंग टू ऑब्जर्व, दे विल गोइंग टू सी what are the market areas where I can operate this, who will going to purchase my product, what type of customers will going to come, what is their annual income, what is their purchasing capacity, whether they will going to purchase my product regularly or not. Okay, for how many days these frozen packets will remain intact? This one is another important part question. ठीक है, तो ये सारा कुछ सर्वे करने के बाद ही वो सिलेक्ट करते हैं कि इसका प्राइसिंग ये रखा जाए। बोर्ड्स मीटिंग में, मैनेजमेंट ऑफ हायर अथॉरिटीज में इस चीज को पास किया जाता है कि मैंने इस प्रोडक्ट का दाम इतना रखा है, मार्केट प्राइस इतना रखा है। ठीक है, उसमें फिर टैक्स दिया जाता है। द गवर्नमेंट यूज टू चार्जेस द टैक्स। देखिएगा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टैक्सेस उस पैकेट के पीछे लिखा रहता है, मीन्स गवर्नमेंट इज चार्जिंग। उसके बाद मिडिल मैन, उसको फिर प्रोडक्ट में सप्लाई करने के लिए, टू सप्लाई मैन दे यूज टू सप्लाई दोस प्रोडक्ट, उसके लिए वो अलग सा चार्ज करते हैं। ये सारा कुछ चार्ज फिर लेविट करके वो एमआरपी बैठाते हैं कि एक इसका कॉस्ट 150 रुपीज चार्ज किया जाता है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव ऑल टैक्सेस। एम आई क्लियर? उसके बाद उसे बाजार में छोड़ा जाता है। इसी तरह से प्राइसिंग किया जाता है। प्राइसिंग एक इतना इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस हुआ, पॉकेट परमिट नहीं हो रहा है, कस्टमर उस चीज को लेना बंद कर देगा। दूसरी सर बात, एक दूसरी चीज बात, सर मेरे को पहले पूछना था सुन लो, सर। पहले सुन लो, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात, बाजार में एक ही प्रोडक्ट्स के इतने सारे ऑप्शंस और वैरायटीज आ चुके हैं कि अगर मतलब इतना फ्रिकल माइंडेड हो गया है कस्टमर कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ वो दूसरे ब्रांड में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैगी। नाउ बिफोर एंडोर्सिंग इट्स प्रोडक्ट, मैगी एक नेस्ले कंपनी की ही है, तो मैगी जब बाजार में आया था, बाजार पूरा छा गया था। 5 मिनट्स नूडल्स, इतना उसका ब्रांडिंग हुआ, इतना इंसान ने उस चीज को खाया। लेकिन आज देखो उसके रिलेटेड बहुत सारा प्रोडक्ट बाजार में आ गया। येपी नूडल्स, ये नूडल्स, फलाना नूडल्स, वो नूडल्स, ये नूडल्स, आटा नूडल्स वगैरह वगैरह, इतना वैरायटीज। आप कोई भी दुकान में चले जाइए, मैगी के अलावा, मैगी एक रखा रखा हुआ है, उसके अलावा बहुत सारा ब्रांडिंग रखा हुआ है। इसके लिए क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, एक तरफ से मैगी अपना प्राइस जो है बढ़ा नहीं पा रहा है, प्राइस वहीं यस का सर। वहीं रह गया है। क्यों? हम्म। अगर मैं प्राइस एक नहीं चवन्नी भी बढ़ाऊंगा ना, तो बगल वाला जो है, टेस्ट, क्वालिटी, स्पाइसेस, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, द बट द लोगो and the company is different. यस Automatically सर। the customer will going to shift and change to another companies. That is why डेफिनेटली the सर। pricing is one of the most sensitive thing. अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, गड़बड़ी हुआ, कस्टमर चेंज हो जाएगा। अब बोलो तुम्हारा सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे हमारे सीडीएस कैंटीन में हमारे जो टैक्स फ्री होते हैं,
तो फिर हम्म सर जो हमें कैंटीन में जो ग्रोसरीज मिलती है तो वो पूरा टैक्स फ्री होते हैं, तो सर इसमें सर कंपनी को क्या प्रॉफिट होता होगा? कंपनी कंपनी को टैक्स फ्री का मतलब क्या है? गवर्नमेंट को और कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आपसे जो डायरेक्ट चार्जेस ले रहा है वही डायरेक्ट पॉकेट में जा रहा है, कोई मिडिल मैन या कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे टैक्स फ्री। हमारे सर पूरे इंडिया में आर्मी सेक्टर बहुत है, हम्म सब में सर ग्रोसरीज जाते हैं। बिल्कुल। अब कंपनी तो ने, सर गवर्नमेंट ने फॉर स्पेसिफिक फॉर आर्मी वालों के लिए टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए है। मैं अगर खरीदने के लिए चाहूंगा मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, I had to pay तो फिर taxes because you serve the army. That's why this is the opportunity and this is the facilities the government is providing to you because you serve the country, you serve the nation. That is why the government is providing this type of facilities. But if तो I will go सर, to the same CDS market, army shop, and if I want to purchase any product, I need to purchase those particular product by paying the extra charges and tax. मेरे लिए टैक्स फ्री नहीं है। तो सर इसमें सर कंपनी को प्रॉफिट होती है? बिल्कुल कंपनी को प्रॉफिट है, इसलिए तो चला रहा है। और हर कुछ कंपनी को प्रॉफिट के लिए नहीं चलाया जाता। इसमें क्या होता है, इसमें गुडविल पर्पस एक आता है, गुडविल, फॉर द गुडविल क्रिएशन। आर्मी की सेवा के लिए, आपने देश सेवा की है, आपकी सेवा के लिए ये गवर्नमेंट एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक फैसिलिटीज दिया जा रहा है। आपको एक फैसिलिटीज दिया ओके। जा रहा है कि आप जो भी सामान खरीदो आप सर्विस फ्री होके पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसको पद्मश्री या पद्म अवार्ड मिल जाता है, पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड मिलता है, तो आप देखिएगा पद्मश्री या पद्म अवार्ड जब मिलता है, पद्म भूषण अवार्ड मिलता है, तो उसमें बहुत सारा क्राइटेरियाज रहता है कि आपको, आपके लिए 5 साल 10 साल जो हवाई यात्रा आप करेंगे, एयर एयर ट्रैवलिंग आप करोगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी ओके। फंक्शंस, गवर्नमेंट फंक्शंस में जाओगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी अब बिग रेस्टोरेंट या फिर कोई भी कुछ परचेस करने के लिए जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। लॉट ऑफ दीज आर द फैसिलिटीज दैट प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग to the ओके। specific customers, not to everyone. Suppose now, if I want to go and purchase something from the CDS shop, what you have mentioned, the army barracks and all, I need to pay the same amount, same tax. मेरे पास जो एमआरपी चार्ज करेंगे, वो जो लिखा रहेगा वो एमआरपी चार्ज करके हमसे पैसा लेंगे, क्योंकि मैं आर्मी वाला यस नहीं सर। हूँ। आप ये चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिएगा। आप सीडीएस कैंप जब जाइएगा, ये जब चीज पूछना सीएसडी चाहिए। सीएसडी। सीएसडी कैंप जब जाइएगा, वो पूछिएगा आपसे, आप उससे उन लोगों से, तो सर आप, हम तो आर्मी वाले हैं, हमसे तो ले लेते, लेकिन जो सीएसडी जो कैंप लगा हुआ है या ग्रोसरीज जो है, वहाँ नॉर्मल कस्टमर जाता है? नो सर, गेट में एंट्री वहाँ नहीं करने देगा। एंट्री नहीं करने देगा ना। हम्म। तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों के लिए है, इसीलिए टैक्स फ्री अच्छा। किया गया है। ठीक है, हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आर्मी बैरक्स में कुछ ऐसा भी कस्टमर जो जाते हैं। ठीक है, कुछ कस्टमर्स जो जाते हैं, जिसका पास जो कि आर्मी में बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी वो जाते हैं, तो वो पूरा पैसा पेमेंट करके इंक्लूसिव टैक्स पेड करके वो फिर सामान लेके आते हैं, क्योंकि आर्मी का सामान अच्छा सामान होता है। शूज, ग्रोसरीज सब कुछ मिलता है, यस, यस सर, यस सर। कपड़ा वगैरह सब कुछ मिलता है। यस सर, एवरीथिंग सर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से लिकर सब कुछ से सब कुछ ग्रोसरी सब कुछ सब मिलता है। कुछ सब कुछ मिलता है। ओके, एक चीज और देखा जाता है, क्लियर है डाउट? यस सर। एक चीज और देखा जाता है, हाउ मच कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, ये भी देखा जाता है। पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं। ओके, पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं, हाउ मच द कस्टमर इज विलिंग टू पे। मैंने कहा ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक शेविंग क्रीम 25 रुपीज में मिलता है, और एक शेविंग क्रीम 150 रुपीज में मिलता है। द क्वालिटी इज सेम, द क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट, but the finishing of the product is always remain the same. तो how much the customer will going to pay for that particular product, ये डिपेंड करता है कितना जन है बाजार में जो आपको उस प्रोडक्ट के लिए 150 रुपीज पेड करेंगे, और कितने सारे ऐसा कस्टमर है जो कि बिल्कुल नहीं देंगे, वो 25 रुपए वाला प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। ध्यान देने वाला है, मार्केट सर्वे जो होता है वो सबसे सबसे सेंसिटिव चीज होता है, इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द कस्टमर, है ना। दुकान में बहुत सारे कस्टमर ग्राहक आते हैं, इसीलिए दुकान में एक तरह का सामान नहीं रखा जाता है।
Be clear about that. Lot of varieties are there, lot of products are there, lot of companies products are there. Why? Because it varies from customers to customer. Some customer want this product, say for example the customer want say product X, some customer want product say for example product Y, some customer are there they want the product Z. तो एक जो ग्रोसरीज होता है या फिर जो सेल्समैन होते हैं उनको सारा प्रोडक्ट अपनी दुकान पे रखना चाहिए, रखेंगे वो, बिकॉज लॉट ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स आर देयर। किसी का सैलरी 25,000, किसी का सैलरी 50,000, किसी का सैलरी 1 लाख। द पर्सन हु इज अर्निंग 1 लाख रुपी पर मंथ दे विल गोइंग टू पे 150 रुपीज फॉर एनी पर्टिकुलर शेविंग क्रीम, दैट इज ओके, क्लियर थिंग। But the person who is earning 25, 30, 34,000, they will definitely not going to purchase 150 rupees. They will going to purchase the product which is below 150 rupees. Understand my point? तो इस तरह का जो कस्टमर है वो बाजार में सबसे ज्यादा है, ये तरह से मार्केट सर्वे किया जाता है। Am I clear? और इसी तरह से प्रोडक्ट सेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस फिक्स्ड किया जाता है। Am I clear? ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है। यस सर। उसके बाद कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है, कंपेटिटिव प्राइसिंग होता है, प्राइस स्कीमिंग होता है, उसके बाद वैल्यू बेस्ड प्राइस होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, पैरामीटर्स है, प्रोसेस है, उसके बाद जाके एक टैग लगता है। आप कोई मेडिसिन खरीदने के लिए क्या आपको लगता है मेडिसिन का जो प्राइस है वो ऐसा ही लग जाता है, ठप्पा लग जाता है, मेरा मन मर्जी हुआ मैंने जो भी प्राइस कर दिया? अरे यार तुम सोचो उस कॉम्बिनेशन का मेडिसिन कितना सारा अवेलेबल है। मैं एक सर पैरासिटामोल लेने के लिए चाहूंगा, हाँ अगर सर, सुनो सुनो सुनो, एक और बस डाउट लिसन, है। पहले लिसन, सपोज आई वांट टू परचेज पैरासिटामोल, ओके, नाउ उस कॉम्बिनेशन, सपोज मुझे पैरासिटामोल नहीं मिला, मैं उसी कॉम्बिनेशन का कोई दूसरा कंपनी का मेडिसिन ले लूंगा, प्राइस घट गया, प्राइस थोड़ा सा 2 रुपया 1 रुपया ज्यादा या कम हो गया, मैं खरीद लिया। एम आई क्लियर? दिस इज द प्राइस स्कीमिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ये दूसरे दिन मैं तुमको समझाऊंगा। यस, तुम्हारा डाउट बोलो। सर डाउट ये है कि अब आपने एक सर एग्जांपल दिया था, एक मेडिसिन सर आप एमआरपी पे खरीदे थे, ठीक है, वो भी सर मेडिसिन बेच रहा, और जो सर मैं मेडिसिन दूसरे शॉप पे वो 20%, 30%, यहाँ तक कि 50% तक भी मेडिसिन पे हम ऑफ देखे हैं रिलायंस में, टाटा मेड्स में, इस सब में देखे हैं सर। तो वो लोगों को सर क्या बेनिफिट होता है, इसको क्या बेनिफिट होता है सर? रिलायंस क्या मेडिसिन बेचता है क्या? पहले पहले ये बताओ। यस सर। रिलायंस स्मार्ट मेडिसिन बेचता है? यस सर, हम जियो मार्ट से खुद लिए हैं, हमेशा ही लेते हैं। जियो मार्ट कहाँ पर है? जियो मार्ट यस, हर मैं जगह कभी सर। जाऊंगा, मैं यस सर, हर जाऊंगा, जगह पे है। मुझे बताना तो कदमा में सर है कि आप, नहीं जियो मार्ट? कदमा में भी है सर आपका, ये सर स्मार्ट बाजार हो गया, रिलायंस हो गया आपका। 50 मतलब मेडिसिन में इतना सारा डिस्काउंट? यस कैन यू सर, अभी इमेजिन? मेरे घर के सामने आपका रिलायंस ट्रेंड भी है, और आपका ये भी है, क्या नाम है उसका, अच्छा चलो ठीक है, रिलायंस चलो का ठीक। ही है क्या जो नाम उसका। देखो बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं, मैंने भी ये चीज नोटिस किया है, लेकिन मैंने दुकानदार से पूछा है, उसने मुझे कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दिया है। तो मैंने जब दुकान से पूछा है, सपोज फॉर एग्जांपल आई वांट टू परचेज सम मेडिसिन, तो जो भी पीछे लिखा हुआ है ना वही प्राइस चार्ज करते हैं। एमआरपी 110 रुपया मतलब 110 रुपया, एक पैसा कम नहीं इधर उधर नहीं। लेकिन मैं वही मेडिसिन जब दूसरे जगह से लेने के लिए चाहता हूँ तो 18% डिस्काउंट या 25% डिस्काउंट, दिस इज नथिंग बट जस्ट टू इंक्रीज द कस्टमर्स, जस्ट टू टेक द इंक्रीज द कस्टमर, देयर इंक्रीज देयर कस्टमर्स, ये सारा ऑप्शंस दिया जाता है। सर स्मार्ट पॉइंट, सर स्मार्ट पॉइंट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी स्मार्ट पॉइंट हुआ ऐसा कोई भी दुकान हुआ 18% 20% डिस्काउंट है, तो ये सब ना क्या है कस्टमर्स को खींचने के लिए होता है। बहुत सारा होता है 5% डिस्काउंट देता है, 18% डिस्काउंट। अपना मार्ट, एक नया मार्ट आया है अपना मार्ट, जहां पर आपको 17% डिस्काउंट ऑन एंटी मेडिसिन और फूड प्रोडक्ट में मिलता है। मैं ग्लूकोज का एक लीटर का जार का 1 किलो का जार खरीदने के लिए गया, मुझे 10% डिस्काउंट में दिया। वही जार जब मैंने कोई दूसरे दुकान से, नॉर्मल दुकान से खरीदने के लिए गया, तो मुझे जो भी एमआरपी है उसने मुझे 5 रुपया घटा के दिया। वाई इज द डिफरेंस? आई थॉट मुझे सर हम लोग यहाँ बल्क में सेल करते हैं, वेन एवर यूज टू सेल वी सेल इन अ बल्क एंड ह्यूज, ठीक है, जिसके के लिए हम लोग ये देते हैं। हम लोग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखते हैं सर, और
कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ज्यादा हम लोग नजर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतना डिस्काउंट देते हैं। सिंपल, उसने यही कहा। देखो दूसरी बात एक और बात है, जो 18% या 20% स्मार्ट या कोई भी शॉपिंग मॉल दे रहा है, वो जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो क्या एक डिब्बा दो डिब्बा खरीदता है? पहले ये सोचो समझो, वो क्या एक डिब्बा दो डिब्बा खरीदते हैं? एक पैकेट मतलब एक पैकेट मतलब एक कार्टून दो कार्टून ऐसा खरीदते हैं? वो तो पूरा एक ट्रक कार्टून खरीद के लेके आते हैं, एक ट्रक पूरा वो भर के सामान भर के लेके आते हैं। तो अगर उतना डिस्काउंट उसे मिलता होगा, सपोज उसको एक ट्रक कार्टून में वो पूरा वो मेडिसिन या कुछ भी ला रहा है, उसको उसमें 50% मिल रहा है, तो कस्टमर्स को 18% तो वो डेफिनेटली दे ही सकता होगा। फिर भी प्रॉफिट मार्जिनली 22% उसके पास प्रॉफिट रहता है। 18% डिस्काउंट देने के बाद भी 22% प्रॉफिट वो कमा रहा है, क्योंकि कंपनी वेयर हाउस से वो डायरेक्ट ला रहा है। दूसरी बात, छोटे छोटे जो दुकान होते हैं, वो मिडिल मैन या फिर छोटा जो सेल्समैन होते हैं उनसे मंगवाते हैं। और ये जो स्मार्ट होता है, वो पूरा जहां मतलब वेयर हाउस है या फिर स्टोर्स है, वहां से डायरेक्ट माल लेके आते हैं। एम आई क्लियर? जैसे सपोज अमेजोन से मुझे कुछ लाना है, तो अमेजोन क्या मिडिल मैन थर्ड पार्टी ये सब पकड़ेगा क्या? नहीं, नो सर। डायरेक्ट आपको घर में जाके दे के आएगा। गोडाउन से कोई सामान डायरेक्टली लाना और दुकान से लाना, दोनों में डिफरेंस है। दुकान वाला क्या करता है, अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुआ, मिडिल मैन चार्जेस हुआ, थर्ड पार्टी चार्जेस हुआ, ये सब कुछ काट के आपको पैसा लेते हैं। लेकिन अगर कोई मार्ट होता है, वो तो डायरेक्ट वेयर हाउस से या फिर आपको कोई गोडाउन से लेके आते हैं, उसको तो डेफिनेटली मिलता होगा। आप डायरेक्ट जाइए ना गोडाउन में जाके लेके आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और चीज सिंपल समझ लो, आपके घर में अगर कोई सिलेंडर देने के लिए आएगा, तो 843 रुपीज 45 रुपीज लिखा रहता है, लेकिन चार्ज करता है 850 रुपीज। यस सर। देखो सवाल समझो पहले, क्यों? क्योंकि वो गोडाउन से आपके लिए माल लेके आ रहा है, वो मिडिल मैन हो गया। तो मिडिल मैन 10 रुपया या 5 रुपया ज्यादा चार्ज कर रहा है। वही मैं गाड़ी लेके गोडाउन में चला जाऊं ना, तो जो लिखा हुआ है 843 या 842 या 840, वही माल मुझे उतना ही नहीं लेके आना पड़ेगा। समझ में आया? ओके। क्लियर हो गया? दिस यस इज द सर। थिंग। दिस इज द थिंग। शॉपिंग मॉल्स जो होता है या कोई भी बिग मॉल्स होता है, इतना परसेंट डिस्काउंट इसलिए दे पाता है क्योंकि वो डायरेक्ट वेयर हाउस से माल उठाता है। तो डायरेक्ट अच्छा वेयर सर। हाउस से माल जब एक उठाता है, अच्छा। पहले कंप्लीट करने दो, तो उसको तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिलता होगा, उसको 50% मिलता होगा। तो वो 18% या 20% डिस्काउंट देने में क्या है कस्टमर्स को? बस हम्म। सिंपल बात समझो। लेकिन हम अगर छोटा मोटा ग्रोसरीज खोले, तो हमको भाई डायरेक्ट माल तो हम ला नहीं पाएंगे। हम अगर लाएंगे भी तो होलसेल मेरा से काम, लाना पड़ेगा। ये समझ में आया? ये सिलेंडर वाला बात समझ लो, दिमाग में बैठाओ। आपके हम्म। घर में सिलेंडर जो डिलीवरी मैन देने के लिए आता है, वो अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वो गोडाउन से ला रहा है, उसका चार्ज लेके 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है, आपको देना ही पड़ेगा। मैं तो डायरेक्ट लोग बोलता जाइए सर गोडाउन से लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोडाउन में अगर जाओगे तो 840 या 845 रुपये पड़ेगा, नो इशू। समझ में आ गया? डायरेक्ट अगर लाना और मिडिल मैन होना, तो उसका अलग से चार्जेस लग जाता है। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट? हम्म, क्या डाउट था, दिमाग से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन दिमाग में रखना, डेफिनेटली आई विल गोइंग टू क्लियर द डाउट्स। ओके, कल भी शायद क्लास रहेंगे, तो कल मैं पीपीटी मॉर्निंग में मैम को शेयर कर दूंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, सर, हो याद आ गया सकता है। सर। बोलो। सर, सर हम लोग एक मॉल पे शॉपिंग करने जाते, क्लोथ्स का बात कर रहे हैं। तो सर एक मॉल पे कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे लिवाइस, लिवाइस का हम जींस हम मतलब पहनते हैं सर। वो जींस हम एक जब लेते हैं, तो मुझे एक जींस 3000 4000 का में मुझे मिलता है। देन मैं वही जींस हम सेल में लेते हैं, वही सेम मॉल से। ठीक है। तो मुझे 2000 में कैसे मिल जाए, जबकि दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। हाँ, डेफिनेटली सेम नहीं होता है। अभिजीत, घर में लाना, दोनों प्रोडक्ट को अच्छे से देखना। एक तो हो गया आउटडेटेड हो गया, कलर कुछ फेड हो गया, एक धागा भी इधर उधर हो जाता है ना, वो प्राइस डिस्काउंट हो जाता है। ओके। एक धागा भी आप पकड़ नहीं पाओगे। ये जो सेल्स देते हैं, पुराना हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, नया स्टॉक मार्केट में आ गया है, उस स्टॉक के लिए जगह खाली करना पड़ेगा नया न्यू माल के लिए। अराइवल। तो हाँ यस, द बिकॉज ऑफ द न्यू अराइवल, लेविस का ही न्यू अराइवल आ गया, अब स्टॉक खाली करना पड़ेगा। तो कैसे खाली करेंगे? डिस्काउंट में दे दो। कलर रखते रखते बहुत सारे ऐसे जीन्स है, कलर रखते रखते यूज करते करते बिक्री नहीं हुआ लेकिन फेड हो गया है, डिस्काउंट में दे दो। कुछ ऐसा हो गया, रश निकल गया होगा, कुछ धागा इधर उधर हो गया, डिस्काउंट में दे दो। सिंपल थिंग।
ठीक ओके है, इसीलिए तुमको जो सामान तुम 3000 में लाता वो 2000 में सेल्स में मिल जाता है। क्यों? जगह खाली करना पड़ता है। देखना शॉपिंग मॉल में एक फ्लोर सर्विस, फ्लोर इंचार्ज होता है, फ्लोर सुपरवाइजर होता है। वो फ्लोर सुपरवाइजर जाके देखना ये चीज, फ्लोर सुपरवाइजर, मैंने कहा ना तुम जाओ ये सब ऑब्जर्व करो। स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्लोर सुपरवाइजर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द फ्लोर सुपरवाइजर, थोड़ा सा टाइम ले लो बता देता हूँ। फ्लोर सुपरवाइजर का काम है जितने भी प्रोडक्ट्स आया है उसको अरेंज करना, और जितने भी प्रोडक्ट आउटडेटेड एक्सपायर्ड हो चुका उसे बाहर निकलना। तो फ्लोर इंचार्ज सिर्फ ग्रोसरीज में नहीं होता है, फ्लोर इंचार्ज हर एक पीएम, हर एक शॉपिंग मॉल्स में होता है। सपोज क्लॉथ सेक्शन, शू सेक्शन, ज्वेलरी सेक्शन, ग्रोसरी सेक्शन, सबका फ्लोर इंचार्ज है। वो फ्लोर इंचार्ज क्या करता है, जितने भी आउटडेटेड स्टॉक है, पुराना स्टॉक है, उसको हटा के नया स्टॉक को अंदर लेना। ठीक है, नया स्टॉक ओके को अंदर लेना। और जब नया स्टॉक अंदर ले लेता है, अब लेविस का इस तो नया मॉडल आ गया, तो पुराना मॉडल क्या कौन पहनेगा? अगर नया मॉडल आ गया तो डेफिनेटली व्हाट दे विल गोइंग टू डू, वो डिस्काउंट में दे देते। आया? इज इट क्लियर? ओके यस सर एनी मोर डाउट? नो सर थैंक यू सर That's okay. Thank you.